سلام على المصطفى. آج اللہ والو خواتین کہتی ہیں کہ ہمارا بدن درد کرتا ہے، کسی نیگیٹو انرجی کی ضرورت نہیں ہے، ان کو برباد کرنے کے لیے یہی شیاطین کافی ہیں جو ان کے ناخنوں کے نیچے. پہلی عورت رات کو بال کھول کے سوئے گی وہ جادو سے پاک نہیں رہ سکتی. سب سے زیادہ شیاطین کی مرغوب غذا جو ہے وہ عورت کے ناپاکی کا خون ہے. الگ سے رکھتے ہیں شاپر میں، وہ جادوگروں کو پہنچائے جاتے ہیں. جادوگر پھر اس خون کے ساتھ تعویذ لکھے جاتے ہیں. حالانکہ جادو کسی اور پہ کر رہا ہے، لیکن جس خاتون کا وہ خون ہے اثر اس پہ بھی آ رہا ہے، اثر اس پہ بھی آئے گا. صلاة سلام على المصطفى. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالخصوص آج کیونکہ میں بات کر رہا ہوں خواتین کے اوپر. خواتین اللہ والوں جو رجت میں پھنسی بھی ہیں، جو کردار کی پاک اور صاف ہیں، یعنی پاکیزہ عورتیں بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، یا کسی درجے میں گناہوں سے بچی ہوئی ہیں، توبہ بھی کی ہوئی ہے، وہ کیوں پھنسی ہیں، اس کی جو وجوہات ہیں وہ میں 2-4 بتاتا ہوں اور 2-4 میں نلائکیاں بتاتا ہوں. ان کے اوپر غور و فکر کرو، ان فیکٹرز کو ختم کرو. اللہ سونا آپ کے دکھ بھی دور کر دے گا اور جن حالات کے اندر آپ جکڑے ہو ان حالات سے بھی اللہ رب العزت آپ کو نکال دے گا. جو آپ اعمال کر رہے ہو ان کے ساتھ پہلے شرائط پوری کرو. کیا کرو؟ شرائط پوری کرو. شرائط میں کیا ہے کہ اپنا یقین، تقوی، ظاہری طور پہ پاک اور باطنی طور پہ پاک یعنی توبہ. چوتھا اور آخری کیا ہے؟ حصار. جب تک آپ اعمال حصار کے بغیر کرو گے آپ کو اعمال سے نفع ہونے والا نہیں ہے. جتنے وظائف کرتی جاؤ گی، جتنے اعمال کرتی جاؤ گی، اتنے نظام روحانیت کے شیطانیت کے کھلتے جائیں گے. جب اعمال بند کرتی جاؤ گی روحانیت کا نظام بند ہوتا جائے گا، شیطانیت کا نظام پھر بند ہونے والا نہیں ہے. وہ شیاطین تمہاری اولادوں کے دشمن بنتے جائیں گے اور تم اجڑتی جاؤ گی. جب ایک بار شیاطین نے تمہیں گھیر لیا، اس کے بعد ہماری خواتین کی جو نلائکیاں ہیں جن کی وجہ سے ہماری خواتین اجڑی اور انہوں نے ہمیں اجاڑ دیا، نسلوں کو اجاڑ دیا، وہ میں نے کہا میں 3-4 نلائکیاں جو ہیں ان کے اوپر کلام کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ وہ ہماری اصلاح ہو جائے تو بہت سے گھر جو ہے وہ مزید برباد ہونے سے بچ جائیں گے. آج اللہ والو خواتین کہتی ہیں کہ ہمارا بدن درد کرتا ہے، ہم سو کر اٹھتی ہیں تو یوں ہوتا ہے جیسے کسی نے ڈنڈوں کے ساتھ سوٹوں کے ساتھ ہمیں مارا ہوا ہے. خواتین کہتی ہیں کہ میری چھاتی پہ وزن پڑتا ہے، میں رات سوئے میں بے بس ہو جاتی ہوں، نائٹ پیرالسس ہوتا ہے. خواتین آ کر کہتی ہیں حضرت صاحب جب سے آپ نے بیان کیے ہیں ہمارے اندر جرأت پیدا ہوئی ہے کہ ہم کسی کو بتا سکیں کہ جنات ہمارے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، ہمارے بدن کے اوپر نشان ڈالتے ہیں، نیل پڑتے ہیں ہمارے بدن کے اوپر، ہمارے بدن کے اوپر کٹ آتے ہیں، ہمارے کپڑے کٹ جاتے ہیں. یہ ساری باتیں خواتین لے کر آتی ہیں. اب یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے تو یہ جو شرائط ہیں وہ نہیں پوری کی. اب آگے یہ کیوں ہو رہا ہے اس کی پہلی وجہ جو سب سے کم درجے کی ہے کہ خواتین ناخن لمبے رکھتی ہیں. جب تک آپ ناخن نہیں کاٹو گی تم عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں قدم نہیں رکھ سکتی. شیاطین کا مسکن لے کر تم روحانیت میں آؤ گی، یہی شیاطین تمہیں لٹکا کے رکھ دیں اور لٹکا دیا. کیا یہ بات تمہیں معلوم تھی؟ یہ بات تمہارے پیشواؤں نے تمہیں بتائی تھی کہ یہ خواتین کے جو ناخن ہیں، نیل بیڈز ہیں، ان کے نیچے شیاطین ہیں اور جنہوں نے انچ کے جو ہے وہ ناخن رکھے ہوئے 7 وظیفے چل رہے ہیں. سٹار پلس، سوشل میڈیا، اس کی باتیں چھوڑ آیا ہوں، وہ سب کو پتا ہے. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، جو نلائکیاں ہماری ہیں جدھر ہمارا دھیان نہیں ہے، توجہ نہیں، ادھر توجہ دلا رہا ہوں. اگر وہ خاتون جو عملیات میں آ گئی ہے، روحانیت میں آ گئی ہے، لیکن ان کے ناخن بڑے ہوئے ہیں، جب ناخن بڑے ہوئے ہیں انہیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، کسی جادو کی ضرورت نہیں ہے، کسی نیگیٹو انرجی کی ضرورت نہیں ہے. ان کو برباد کرنے کے لیے یہی شیاطین کافی ہیں جو ان کے ناخنوں کے نیچے. پہلی بات. پھر اگر ناخن کاٹے ان کو جہاں چاہا پھینک دیا. اللہ جب عورت یا مرد ناخن پھینکتا ہے، ناخن ان اشیاء یا ان اسباب میں سے ایک سبب ہے، ان اشیاء میں سے ایک شے ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ جادو چلتا ہے. پہلی نلائکی ہو گئی. دوسری، عورتوں نے بال کھول کے سو گئی رات کو. جو عورت رات کو بال کھول کے سوئے گی وہ جادو سے پاک نہیں رہ سکتی، نیگیٹو انرجی سے پاک نہیں رہ سکتی. ساری رات شیاطین اس کے بالوں کے ساتھ کھیلیں گے. پھر جب وہ حصار کمزور ہوتا جائے گا پھر اس کے بدن کے ساتھ کھیلیں گے. جب بدن کے اوپر بھی تصرف حاصل کر لیں گے پھر وہ عورت کے ساتھ وہ کچھ کریں گے جو کہ نہیں کرنا چاہیے. پھر سب کچھ ہوگا چاہے عورت مانے یا عورت نہ مانے، حیا کی وجہ سے چھپائے یا ویسے وہ لا علمی کی وجہ سے ماری جائے، وہ الگ بات ہے. ہوگا سب کچھ جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ رات کو بال کھول کر سونا. تو جو بازار میں بال کھول کر جائے گی اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ باتیں میں نہیں کر رہا، وہ کچھ سمجھتے جاؤ. میں وہ بات کر رہا ہوں مذہبی لوگوں کی. مذہبی بچیاں جو ہیں وہ تو بازار میں مائیں بہنیں بیٹیاں پردہ کر کے جاتی ہیں. گھروں میں اگر سر کے بال کھول کے سوئیں گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا. یہاں سے عبرت حاصل کریں وہ خواتین جو بازاروں میں بے پردہ پھرتی ہیں، ان کے اوپر نیگیٹو انرجی کتنی جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہوگی. پھر کنگھی کی، بال سنوارے. جو بال ٹوٹے ان بالوں کو کہیں محفوظ جگہ پہ ڈسپوز آف نہیں کیا، سمیٹا نہیں ہے. اللہ جب آپ نے بال سنوارے، یعنی خاتون اس نے بال سنوارے، بال پھینک دیے، بالوں کے اوپر شیاطین جادو کریں گے. شیاطین تمہارے گھر میں غلط وظائف پڑھنے کی وجہ سے پہلے ہی مقیم ہو چکے ہیں. اب جب وہ تمہارے بالوں کو پکڑیں گے ان بالوں کے اوپر جادو کریں گے. تمہارے ناخن پکڑیں گے ان ناخنوں کے اوپر جادو کریں گے. تم بال کھولو گی تمہارے بالوں کے ساتھ لپٹیں گے. تم ناخن بڑھاؤ گی تمہارے ناخنوں کے نیچے رہیں گے. جب انہی ناخنوں، انہی انگلیوں، انہی ہاتھوں کے ساتھ پکاؤ گی، کھاؤ گی، کھلاؤ گی، سارا گھر ٹنگیا نہیں ٹنگیا جائے گا.
मुजरम कौन है? मुजरम कौन है? शफी का सवाल ये है। तो अल्लाह बोला मुजरम हम खुद हैं, जिम्मेदार हम खुद हैं। जब शयातीन अल्लाह की नाफरमानी गलत वज़ाइफ की वजह से घर में आ गए, उसके बाद औरत ने बाल ना समेटे, शयातीन चिमट गए, नाखून बढ़ाए, शयातीन यहां रहाइश पजीर हो गए। अब वो औरत चलती फिरती तो इंसान है, हकीकत में वो शयातीन की मलका है। हकीकत में शयातीन की मलका है। किसी की वो माँ है, किसी की वो बहन है, किसी की वो बेटी है, किसी की वो बीवी है, वगैरह वगैरह। हकीकत में वो शयातीन की मलका है। जहां वो जा रही है शयातीन साथ हैं, जो वो पका रही है, खा रही है, बोल रही है, सबके अंदर शयातीन का दखल है। दिनों के अंदर सारा घर नाफरमान हो जाएगा, बेनमाजी हो जाएगा। वो शोहर जो शादी से पहले करोड़ों कमाता था, ऐसी औरत उसके घर में जाएगी, वो पाई पाई का मोहताज हो जाएगा, पाई पाई का मोहताज हो जाएगा। फिर यही शयातीन रात को ख्वाबों में आएंगे, फलां ने जादू कर दिया, फलां ने जादू कर दिया, और सारा नजला किस पे गिरना है? जेठानी ने कर देता, हमसाई ने कर दिया है, फूफी ने कर दिया है, पता नहीं चल रहा। मलका साहबा खुद ही जादूगर नहीं है, मलका साहबा खुद ही जादूगर। ये दो नलायकियां हो गई। तीसरी नलायकी जो असल आज का मौजू है, जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, कि हमारी माएं, बहनें, बेटियां आज हर तीसरी चौथी औरत के साथ जिन्नात बदफेली क्यों कर रहे हैं? हर पांचवी औरत जिन्नात ने अपने पोजेशन में क्यों ली हुई है? पोजेस्ड क्यों है? ऑक्युपाइड क्यों है? असेब ज़दा क्यों है? जिन्नात के कब्जे में क्यों है? उसकी वजह बता रहा हूं। दो वजूहात जो बहुत अहम है, एक है नाखून बढ़ाना, एक है बालों का खुला छोड़ना। दो तीसरी बात जो सबसे ज्यादा अहम है, जिसने माशरे को बर्बाद करके रख दिया है, वो है खवातीन के पीरियड पैड्स। खवातीन के पीरियड पैड्स सबसे ज्यादा शयातीन की मरहूब गज़ा जो है, वो औरत के नपाकी का खून है, यानी औरत के जो अयाम या हैज का खून है, वो सबसे ज्यादा मरहूब गज़ा है शयातीन की। शयातीन की कि औरत हालत नपाकी में थी, अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र करती रही, इस्तिग़फ़ार करती रही। हमारी माओ बहनों बेटियों की तरबियत क्या हुई है? नमाज नहीं पढ़नी, कुरान की तिलावत नहीं करनी, रोजा नहीं रखना, जिक्र अस्कार नहीं करना। क्यों नहीं करना? साड़ी छुट्टी है। हमारी माओ बहनों का असल नक्शा या तस्वीर ये है। जो थोड़ी बहुत नमाज रोजा करने वाली भी हैं, अल्लाह अल्लाह करने वाली रूहें भी हैं, जो ही अयाम शुरू हो गए सब कुछ बंद। ये दीन हमने सीखा। भाई नमाज बंद है, कुरान की तिलावत नहीं करनी, रोजा नहीं रखना, बाकी सब कुछ करना है, बाकी सब कुछ करना है। जब जिक्र रोक दिया, हर तरह की हिफाजत का निजाम खत्म, हसार नहीं है, अल्लाह का जिक्र नहीं है, इस्तिग़फ़ार नहीं है, दुरूद पाक नहीं है, उधर से अयाम शुरू हो गए, नेगेटिव एनर्जी इतनी है, शयातीन टूट पड़े, क्योंकि उनकी वो गज़ा है, उनकी वो गज़ा है। अल्लाह बोलो ये ऐसे ही है कि यहाँ पे आप मीठा तो रख दें, ऊपर कपड़ा ना डालें, फिर आप कहेंगे मक्खियां बैठ गई। मुझे बताओ मक्खियों का क्या कसूर है? अब आप ये कह रही हैं कि हमारे ऊपर शयातीन मुसल्लत कर दिए गए या शयातीन मुसल्लत हो गए। भाई जब आपने मीठा रखा तो आपने मीठा रख के कपड़ा क्यों ना डाला? आपने बर्तन को ढांपा क्यों नहीं है? कसूर किसका है जिसने बर्तन नहीं ढांपा? तो इसी तरह बोलो जब औरतों ने एहतियात नहीं की तो शयातीन उनके ऊपर मुसल्लत हो गए, यानी चिमट गए। अब खवातीन जब अयाम के साथ होती हैं तो जब खून बहता है, वो खून जिस कपड़े को लगता है, वो कपड़ा जब एहतियात के साथ ना रखा, पीरियड पैड्स इस्तेमाल किए, उनको फेंक दिया, जो ही वो पैड्स फेंके जाते हैं शयातीन टूट पड़ते हैं। पहले वो पैड्स घरों के अंदर फेंके जाते हैं लापरवाही के साथ, बाद में वही डस्टबिन जो है, जो कूड़े के ढेर है, वहां फेंकी जाती है। जिन शयातीन ने उस पीरियड पैड पे लगे हुए खून की बदबू को सूंघा, जो उनकी खुराक है, जिस औरत का वो खून है, उसके पीछे पीछे वो चले आएंगे, उसके पीछे पीछे वो चले आएंगे। हमारी पहले माएं बहनें आज से यानी 30-35 साल पहले, जब ये पीरियड पैड्स का रवाज नहीं था, कपड़ा आम इस्तेमाल होता था, वो खवातीन इसलिए बची हुई थी, एक तो हया थी उस वक्त, आज की तरह बेशर्मी नहीं थी कि घर के अंदर सब कुछ इनर वियर्स भी और पीरियड पैड्स भी अलग ऐलान आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसका इजहार हो रहा है, कोई शर्म हया नहीं है, कोई शर्म हया नहीं है। वो दौर था शर्म हया का। दूसरा क्या था कि पीरियड पैड इस्तेमाल नहीं होते थे, इस्तेमाल होते थे कपड़ा। खवातीन उस कपड़े को धोती थी, जब धोती थी तो खून जो उसके साथ लगा हुआ होता था वो नाली में चला जाता था, इसलिए खून का सुराग ही नहीं मिलता था। जब खून का सुराग नहीं है तो खातून का पता कहां से मिलेगा? तो औरतें हया के अंदर रहते हुए, अपनी तरबियत के अंदर रहते हुए, उस दायरे के अंदर रहते हुए महफूज थी। आज जब हया का दामन हाथ से छूटा, लिबरल हो गए, मेरा जिसम मेरी मर्जी हो गए, वो जी बुनियादी जरूरत है, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? जब ये वाली सोच आ गई, ऊपर से पीरियड पैड्स आ गए, मैंने क्या बताया, इस्तेमाल किया तो फेंका, इस्तेमाल किया तो फेंका। पहले वो घर में पड़े रहे, उसके बाद वो चले गए ढेर पे। तो जिन शयातीन ने उस खून को सूंघा, उसकी हमक को उन्होंने सूंघा, जिस औरत का वो खून होगा, अगर उनको वो हमक पसंद आ गई, वो चलते हुए एक पल में उस औरत के पास पहुंचेंगे। फिर क्या होगा? उस औरत के साथ वो चिपकेंगे। आज अल्लाह वालों हर 10वीं औरत यहां आकर रोती है कि शाफी साहब जब से आपके बयान सुने, हमें तो अब समझ आई है कि हमारी रानों के साथ जो फिरता है वो क्या है, हमारे कंधों के साथ जो चिपका है वो क्या है, वो क्या है। हमें तो अब समझ आई है कि जो हमारे साथ हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए, अब समझ आई है कि इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं और जिन्नात ने कैसे हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। नौजवान बच्चियां, कॉलेज की बच्चियां, अनमैरिड बच्चियां, सिंगल बच्चियां अब आके रोती हैं। क्यों? जब मैंने इन मौजूआत के ऊपर कलाम किया, उन्हें शऊर आया।
पहले तो वो शर्म से मार रही थी, वो किसको बताती कि हमारे साथ ये मसला है। तो मैं मैंने आपकी तवज्जो उन अवामल की तरफ दिलाई है, अगर जिंदगी सुखी चाहते हो, जादू टूने से बचना चाहते हो, तो अपने नाखून, अपने बाल और अयाम का खून, इसके ऊपर ध्यान करो। बाकी जो शरीयत के मसाइल हैं, पर्दा करना है, नमाज है, अल्लाह की नाफरमानी से बचना है, आंखों की हिफाजत करनी है, रिज़्क़ हलाल कमाना, वो जनरल मौज़ूआत के ऊपर बयानात तो अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज होते हैं। खवातीन की तरबियत के लिए आज जो मैं बातें कह रहा हूं, वो मैंने 3 बातें कही हैं। जिस औरत ने अपने नाखून संभाल लिए, जिस औरत ने अपने बाल संभाल लिए, जिस औरत ने अपने हैज का कपड़ा संभाल लिया, उस औरत पे जादू नहीं चल सकता, उस औरत पे जादू नहीं चल सकता। जिस तरह मर्द के ऊपर जादू बहुत कम असर करता है, इसी तरह औरत के ऊपर भी जादू बहुत कम असर करेगा, यानी वो उतनी ही महफूज हो जाएगी जितने मर्द आमतौर पे महफूज होते हैं। अगर आप दिन रात वज़ाइफ कर रहे हैं, मेरे कहने पे इलाज कर रहे हैं, कहीं से इलाज करवा रहे हैं या खुद किताबों से पढ़ के इलाज कर रहे हैं, जब तक अपने बालों की, अपने नाखूनों की और अपने अयाम के कपड़े की हिफाजत नहीं करोगे, तुम्हारी जान छूटने वाली नहीं है। जब तुम्हारा खून जिस जिन को पसंद आ गया, वो जिन्नात तुम्हें चिमटेंगे भी। फिर अगला नुकसान क्या होगा? अगला नुकसान क्या होगा कि ये शयातीन उसी खून के ऊपर जादू करेंगे, उसी खून के ऊपर जादू करेंगे। फिर तुम्हारे पीरियड पैड जो कूड़े के ढेर पे फेंके जाते हैं, आज जो कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा करने वाले हैं, वो पैड्स खवातीन के इकट्ठे करते हैं जिनके ऊपर खून का धब्बा नमाया होता है। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि ये बिकते हैं? हाँ, शाफी बता रहा है ये बिकते हैं, शाफी बता रहा है ये बिकते हैं। माओ, बहनों, बेटियों, तो आंखें खोलो कि तुम्हारी नामूस कैसे पमाल हो रही है बिलवास्ता तौर पे। वो पीरियड पैड हैं, वो आज बिक रहे हैं और इस इस्लामी मुल्क में बिक रहे हैं, इस पाकिस्तान में बिक रहे हैं। कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा करने वाले वो साफ पैड जिनके ऊपर खवातीन के अयाम का खून लगा होता है, उनको अलग से रखते हैं शॉपर में, और वो जादूगरों को पहुंचाए जाते हैं। जादूगर फिर उस खून के साथ तावीज़ लिखते, तावीज़ लिखे जाते हैं, हलाकत के तावीज़ लिखे जाते हैं, महबूब कदमों में वो तावीज़ लिखे जाते हैं, किसी को बिस्तर पर डालना है तावीज़ लिखे जाते हैं। क्यों? जो औरत के अयाम का खून है, उससे ज्यादा नजस, उससे ज्यादा नापाक और उससे ज्यादा पुरतासीर कोई अमल नहीं बनता, कोई माया, कोई ठोस चीज नहीं है जिसके ऊपर जंतर मंतर तंत्र पड़ा जाए और उसका असर आ जाए। जितना औरत के अयाम के खून से जादू तेज होता है, और कोई सबब नहीं है, कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। तो ये खवातीन के जो पैड्स हैं, ये कूड़े के ढेर पे जब जाते हैं, तो मैंने क्या कहा, फिर ये जादूगरों के पास जाते हैं। फिर जिस खातून का वो खून है, जब वो इस्तेमाल होता है, बेशक जादूगर जादू किसी और पे कर रहा है, लेकिन जिस खातून का वो खून है, असर उस पे भी आ रहा है, असर उस पे भी आएगा। रूहानियत में बुजुर्गान औलिया अल्लाह एक मिसाल दिया करते थे, किताबें भरी पड़ी हैं, कि जो मुरीद, जो सालिक अपनी कैफियत को ऐसे छुपाए जैसे औरत हैज का कपड़ा छुपाती है, वो कामयाब हो जाएगा। ये एक मिसाल बनी हुई थी कि औरत हैज के कपड़े को इतना छुपाती थी, इतना छुपाती थी, इतनी शर्म हया थी। तो ये एक मिसाल बन गई कि रूहानियत के मुसाफिर जो अल्लाह उनको दिखाए उसको छुपाए। तो आज खवातीन जिस तरह खरीदती हैं अलल ऐलान, ऐसे फेंकती भी अलल ऐलान है। खानका का वाशरूम काबिल इस्तेमाल नहीं रह जाता, वो भरा हुआ होता है। गली है तो वो भरी हुई है, बड़ी महफिल है तो बरामदा है तो वो पैड इसके साथ भरा हुआ है। ये हमने अपनी औलाद को तरबियत दी और खुद तस्मिया करते रही। ये माओ ने अपनी बेटियों को तरबियत दी। माएँ जो आज की हैं या मेरी माओ के बराबर हैं, क्या उन्होंने इस तरह किया था? ये अपनी औलादों को आपने तरबियत की है और खुद जो है वो तस्मिया लेकर बैठ गई हो। इन औलादों को मुलाजमीन के हवाले कर दिया, उन्होंने ये दीन सीखा है और ये तरबियत हासिल की है, और उस तरबियत का आज नतीजा निकला जो शाफी बता रहा है कि तुम्हारी बेटियों के पीरियड पैड्स पाकिस्तान में बिक रहे हैं, यूज्ड, अनयूज नहीं, यूज्ड बिक रहे हैं। कुछ शर्म कर लो, हया से मर जाओ, हया से मार दो। इसलिए अर्ज कर ये करना चाहता हूं, अपने नाखूनों की हिफाजत करो। जब नाखून काटो तो उनको डस्टबिन में डालो, उनको वेस्ट करो, ताकि वो किसी भी शैतान के हथे ना चढ़े, ना किसी इंसान के हथे चढ़े। इसी तरह कंघी करो, बाल आपके टूटते हैं। देखिए मेरे ऊपर जब पीर के साथ दुश्मनी पड़ी, आमिल के साथ दुश्मनी पड़ी, तो मेरे ऊपर जो जादू सबसे ज्यादा मुअस्सर हुआ या जिस जादू ने मुझे नुकसान पहुंचाया, वो क्या था? मेरे दाढ़ी के बाल थे, और मेरे घर से चोरी हुए। और कैसे चोरी हुए? कि जो ब्रश मैं करता हूं दाढ़ी पे, उस ब्रश के अंदर बाल थे। वो खातून उसने भेजी, वो हमारे घर आई, उसने आकर मेरे कमरे में वो ब्रश से दाढ़ी के बाल निकाले, फिर उस पीर को पहुंचाए, क्योंकि उस पीर की वो मुरीद थी, मेरा भी उनके साथ ताल्लुक था, उस खातून का हमारे घर आना जाना था। अब जब मेरे बाल उनके हाथ आ गए तो समझो कि मैं कमर से उनके हाथ आ गया। तो ये बात अल्लाह वालों आपको समझा रहा हूं, हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर जो जादू चला वो भी रेश मुबारक यानी दाढ़ी के बालों के ऊपर चला था। तो खवातीन के जो सर के बाल हैं उनके ऊपर जादू चलता है। इस तरह जब खवातीन जो है वो बाल साफ करें, कंघा करें, ब्रश करें, जो टूटते हैं उनको फौरन डस्टबिन के अंदर डाला, या जो भी कोई तरीकाकार है उस तरीके के मुताबिक उन्हें मुकम्मल डिस्पोज ऑफ किया। ये नहीं कभी वहां रख दिए, कभी वहां रख दिए, या ब्रश के अंदर रहे, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। और सबसे ज्यादा जो एहतियात करनी है, जो आज का मौजू था, वो ये कि जो खवातीन जो तो है गाफिलीन, वो हमारा मौजू नहीं होती, जो मजहबी घराने की खवातीन है, वो जो सबसे ज्यादा नुकसान इस वक्त उठा रही हैं, उधर मैंने तवज्जो दिलाई है, वो है हैज का खून, वो है पीरियड पैड्स। अपने पीरियड पैड्स के बारे में बहुत मोहतात रहें। जब आप उसको इस्तेमाल कर लें, उसके बाद आप पानी उसके ऊपर डालें, यानी मुस्लिम शावर है उसके ऊपर पानी डालें। जब पानी डालेंगे तो उसका खून जो है उसमें से निकल जाएगा, और जो बाकी रह भी जाएगा वो आपका डाखाना बताने के काबिल नहीं होगा। क्यों? जो तेज खून है वो पानी के साथ ही बह जाएगा, हल्की सी
गुलाबी रंगत रह जाती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब उस पैड को शॉपर में डालें, डस्टबिन में डालें और जहां मर्जी फेंकें, खुद जाएं या किसी मुलाजमा को भेजें, अब डरने की जरूरत नहीं है। ना अब वो पैड जादूगर के काम का रह गया है और ना वो पैड शयातीन की खुराक रह गया है, ना वो पैड आपके किसी दुश्मन के काम का रह गया। अब आप 100% महफूज हो गए। अब खवातीन 100% महफूज है। इसलिए मेरी माएं बहनें बेटियां, क्योंकि ये फितरी अमल है, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। आपको जब ये मसला दरपेश हो, जब भी आप पैड इस्तेमाल करते हैं तो पैड के ऊपर जितना खून लगा हुआ है, पैड को डस्टबिन में डालने से पहले उसके ऊपर मुस्लिम शावर के साथ पानी फेंकें, या कोई भी तरीका पानी फेंकने का है तो या पांव रख के उसको दबा दें ताकि उसमें से पानी जब जाए तो खून निकल जाए, रंगत जब कम हो जाए गुलाबी, उसके बाद आप उसको जाया कर दें। कभी आपके ऊपर जादू नहीं चलेगा। जब हैज के खून के ऊपर जादू किया जाता है, अल्लाह ना करे शयातीन आपके दुश्मन बन गए, वो आप पे जादू करेंगे तो वो औरत कभी नमाज नहीं पढ़ सकती। वो जादू इतना सख्त होगा, वो औरत कुरान से दूर होगी, नमाज से दूर होगी और ला इलाज बीमारियों में मुब्तला होगी। और अगर उसी खून के ऊपर जादू किया गया और जादू पड़ा उसकी औलाद के ऊपर, उसकी औलाद सारी की सारी बदकिरदार हो जाएगी। बच्चियां हैं तो वो गलत रस्तों पे और बेटे हैं तो वो गलत रस्तों पे चल पड़ेंगे। तो इसलिए ये बातें मैंने आप हजरात की तरबियत के लिए अर्ज की हैं। अगर अपने आप को अजाब से बचाना चाहते हो, अपनी नस्लों को अजाब से बचाना चाहते हो, सिद्क़े दिल से तौबा कर लो, जो मैंने एहतियातें बताई हैं वो करो, और दूसरा शरीयत की पासदारी करो, अल्लाह की नाफरमानी से बचो। इंशाअल्लाह दिल नहीं चढ़ेगा, अल्लाह हालात को फेर देगा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।